ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರುಗಳನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೀಗ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫೋರಂ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಅಮಾಯಕರು, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಕಡುಬಡತನದ ಅಮಾಯಕರ ಪರ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫೋರಂ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. May I introduce my colleagues. I am Syed Ishratullah Advocate. I am the Vice Chairman of Secular Advocate Firm. Mr. Syed Ishtiaq Ahmed, he is the Chairman of Secular Advocate Firm. Mr. Mir Ziaullah, he is our member. Janab Usman Saab, Senior Advocate High Court. Janab Muzaffar Ahmed Saab, Janab Nayaz Ahmed Saab, Mr. Shaul Hamid, he is the General Secretary of Secular Advocate Firm. Sir, I welcome all of you. Just I want to brief you what we have done so far regarding the DGLD and KGLD raid. Sir, as you all aware, that during the month of August 2020, and unfortunately a riot was broke out. I don't want to go into the details. You are all aware of that. The impact that hundreds of innocent people have been taken into custody and they have been lodged in jail. Maybe some persons who have committed some mischief, but majority of them are innocent, and we as a Secular Advocate Forum, we stood for them from the beginning, and we conducted a series of meetings. There we inform them that we are with you. You don't worry. You are innocent people. We know that you are from poor families and you are unable to engage any advocate, and we will there for your service. You don't pay a single penny to us, and we are ready to defend you peoples. Thereby we have filed a writ petition, a PIL in the Honorable High Court of Karnataka, where we ask the Honorable Chief Justice to monitor the investigation under the guidance of the High Court of Honorable Karnataka. We also filed parade for the amalgamation of affairs. As you know, there are only two incidents, one in KGHD limit and other is in DGHD limit. But the police have registered about 74 FIRs. So 74 FIRs जो है रजिस्टर हुए, सिर्फ दो इंसिडेंट के बारे में हुए. दो, एक केजीहಳ್ಳಿ में गलाटा हुआ, दूसरा गलाटा जो हुआ जीवनपल्ली में हुआ, जहाँ पर एमएलए के घर के ऊपर या पुलिस ने पार लगाए. तो हम लोगों ने हाईकोर्ट से प्रेयर की थी कि भाई ये 73 FIR जो है ये टू इंसिडेंट्स के लिए, तो अमालगमेशन ऑफ FIR के लिए भी हमने प्रेयर की थी. तो उसके बाद जो है जैसे जैसे अक्यूज अरेस्ट होते गए, we've taken the services of a number of senior advocates. They have also honorably come. वो भी अपनी सर्विसेज जो है मुफ्त में दिए. उन्होंने भी हमसे कोई फीस डिमांड नहीं की. मैं ख़ास तौर पर जनाब प्रमोद चंद्रा साहब का नाम लेना चाहूँगा और जनाब पुनन्ना साहब का नाम लेना चाहूँगा, तो जनाब बालन साहब का नाम लेना चाहूँगा. तो इन एडवोकेट्स ने इन मुकदमों की पैरवी की और इन लोगों ने मुख्तलिफ कोर्टों के अंदर जो है बेल एप्लीकेशन डाली. बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द क्राइम स्टेज ये तमाम बेल एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो गई. किसी को जो है बेल नहीं मिली. हाँ, हाई कोर्ट के अंदर एक आर्डर हुआ कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा इट विल बी मॉनिटर अंडर द चीफ जस्टिस. इसका फ़ायदा ये हुआ जब UAPA की जब चार्जशीट फाइल की गई, इसमें जो है तकरीबन 80% लोगों को जो है UAPA से मुस्तरना किया गया. एंड दे हैव रिमूव्ड द नेम्स. ओनली 20% हैव बीन चार्जशीट अंडर UAPA. 80% हैव बीन चार्जशीट अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ IPC. इसका जो है ये रिट पिटीशन का फ़ायदा जो है हमको ये हुआ. I will tell you the number of that IPL 9798/20 is the PIL number which is filed before the Honorable High Court of Karnataka, and it is pending and it is posted for the objection. The government has to file objection regarding our IPL. So far the government has
not filed objection and it is posted for objection. Then now we have filed bail application under UAPA. UAPA के अंदर जो है, जो हमको लगा कि ये लोग मासूम हैं, जो इनोसेंट्स हैं, तो ऐसे हम लोगों ने 10 आदमियों को सेलेक्ट किया है. 10 लोगों की बेल जो है स्पेशल CC 152 और 2001 क्राइम नंबर 125 DGHD के अंदर ऑलरेडी है फाइल्ड द बेल एप्लीकेशन अंडर UAPA. और DGHD KGHD के अंदर जो है क्राइम नंबर 229 और स्पेशल CC नंबर 150/21 इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड बाय NIA. इसके अब बेल एप्लीकेशन भी आज प्रिपेयर हुआ है, इंशाल्लाह कल जो है उसमें भी फाइल हो जाएगा. इसमें भी हमने सेलेक्ट किया है सम इनोसेंट पर्सन्स, जिनको हमको लगा कि इन लोगों का रोल कुछ नहीं है, इन लोगों के ऊपर गलत मुकदमा डाई है, ऐसे लोगों को चुनकर हमने ये किया है. जनाब उस्मान साहब और जनाब मुजफ्फर साहब जो है इस मुकदमे की, इस बेल एप्लीकेशन की पैरवी ये 2 साहब कर रहे हैं. अब मैं दूसरी बात जो रिलीज़ होने की बात कर रहा हूँ, मेरा चंद दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था, सर 7 महीने हो चुके हैं और अभी तक रिहाई मुकम्मल नहीं हुई, ऐसा क्यों है बोल के. अब हम शुरू से इस मुकदमे की जो है हम लोग कर रहे थे. अब जैसे ही चार्जशीट फाइल होना शुरू हुए तब क्या हुआ, बहुत से वकला जो है उन लोगों ने आके बेल एप्लीकेशन डालना शुरू कर दिया जो हमारे साथ नहीं थे, ऐसे वकला. अब ये कौन वकला, अब जो साहिब हैसियत थे, यानी दोज हु आर केपेबल ऑफ हायरिंग द एडवोकेट, दोज फैमिलीज दे हैव एंगेज सम एडवोकेट्स. उन लोगों ने एडवोकेट्स को हायर करना शुरू किया. उन लोगों ने ज़ाती अपने जेब से पैसा दे के उन लोगों को हायर करके उन लोगों ने बेल एप्लीकेशन डालना शुरू किया और अपनी खुद की श्योरिटी दे के उन लोगों को रिहा करना शुरू किया. तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, चलो भाई हम लोग जो खड़े हैं, हम तो सिर्फ जो गरीब हैं, जो वकील नहीं कर सकते, जिनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि कोई वकील कर सके, या जिनकी माली हालत ऐसी नहीं है जो ज़मानत दे सके, तो हम लोग जो है उनकी पैरवी करने के लिए आ गए. तो हम लोगों ने चुप साध ली, चलो भाई थोड़ा वक्त हम खामोश रहते हैं कि जिन जिन लोगों के जो लोग श्योरिटी दे सकते हैं वो अशखास अपनी श्योरिटी दे ले. तो तकरीबन 200 अफराद डिफरेंट वकला जी, तो इन वकला से सर्विसेज लेके उन्होंने अपने ज़ाती अखराजात से, अपने ज़ाती पैसों से उन्होंने उनकी रिहाई कर ली. अब जो रिहा हुए हैं तकरीबन 200 अफराद रिहा हुए, ये ऐसे अफराद हैं जिन्हें 2 या 4 केसेस के अंदर उनको मुलवस किया गया है. अब बाकी 200 या 250 अफराद ऐसे हैं जिनके ऊपर 20-20 मुकदमात हैं. अब ऐसे अफराद जिनके ऊपर 20-20 मुकदमात हैं, उन लोगों की पैरवी करने वाला कोई नहीं है. अब हम लोग जो है ऐसे लोगों की पैरवी कर रही है. इस सिलसिले में जो है अमीर शरीयत जनाब सगीर अहमद साहब की सदारत में, उनकी लीडरशिप में जो है एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसके अंदर जो है सेकुलर एडवोकेट फोरम के साथ पॉलिटिकल पर्सन्स, सम MLA MLCs एंड सम अदर पर्सन्स और दूसरे इदारे जो मुस्लिम इदारे हैं, जैसे मुत्तहिदा महाज है, जमीयत इस्लामिया हिंद है, जमीयत इस्लामी है, ऐसे इदारों की एक कमेटी तश्कील दी गई जो हमारे और उनके ताउन से जो है जो बेगुनाह अफराद हैं इनकी पैरवी करने के लिए और इनकी ज़मानत का इंतज़ाम करने के लिए, इसके लिए फ़ाइनेंशियल जो भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी ज़िम्मेदारी उन लोगों ने उठाई है. अब हमारा काम क्या है, हम सेकुलर एडवोकेट फोरम का काम जो है, हम लोगों का काम जो है जो अफराद की ज़मानत देना है वो ज़मानत का इंतज़ाम करना, उनका एफिडेविट्स बनाना, कोर्ट में डालना, उनको रिहा करना. और जिन लोगों की बेल नहीं हो चुकी है हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, आपके मेरे पास डाटा है, मैं बताता हूँ आपको. देखिए दीज आर द क्राइम नंबर्स, ये क्राइम नंबर्स हैं. क्राइम नंबर 196 197 है. अब इसमें एक हम लोगों ने टोटल कितने एक्यूज है ये नहीं डाला है, कितने अफराद की बेल होनी है, श्योरिटी किन लोगों की देनी है वो नंबर हमने डाला है. क्राइम नंबर 196 में अभी 12 अफराद की श्योरिटी नहीं हुई.
क्राइम नंबर 197 में 39 आदमियों की श्योरिटी नहीं हुई, क्राइम नंबर 198 में 38 आदमी की श्योरिटी नहीं। इस तरह से हमने लिस्ट बनाई। टोटल कितने अफराद हैं? इफराद तकरीबन 200 या 250 अफराद जो है फर्द कर लेंगे तो तकरीबन 250 या 240 आदमी ही जेल में ही। मगर एक आदमी के ऊपर समझो 20 मुकदमा थे, 10 मुकदमा थे, तो अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएंगे, यानी हमको 2000 अफराद की श्योरिटी देने का काम पड़ेगा। तो जनाब सगीर साहब ने वादा किया कि भाई जितना भी पैसा लगे, जितनी भी श्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, हम लोग इसका इंतजाम करेंगे। आप लोग जो है अदालत के काम जो भी है वो काम आप कीजिए, जो पैसे का इंतजाम है वो हम लोग करेंगे। उन लोगों ने अपना एक नुमाइंदा बनाया है, उस नुमाइंदे के हाथ में उन्होंने कुछ रकम दी है। अब हमको जैसे ही रकम की जैसे ही श्योरिटी हो रही है, हम उनको बता देते हैं कि भाई देखो भाई ये आज का ये केस हुआ, इस केस के अंदर जो है इतने आदमियों की श्योरिटी हो जाएगा, इनका इतना जो भी पेमेंट है आप उनको दे दीजिए। बाकी पेमेंट लोग हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो पेमेंट जो है वो जो श्योरिटी जो दे रहा है उसका वो पेमेंट वो हो रहा है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब बाकी रहा मेजर केसेस जो हैं, अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, यूएपीए के अंदर जो है 2 केसेस हैं। 2 केसेस के अंदर एक केस में हमने 9 अफराद के ऑलरेडी वी फाइल बेल एप्लीकेशन, और डीजेडी का कल इंशाल्लाह 10 आदमियों के खिलाफ जो है वो भी हम लोग फाइल कर देंगे। अब और SC/ST के 2 केसेस, वो जो कंडा श्रीनिवास मूर्ति का जो घर जलाया था, उस केस के अंदर जो है सिर्फ हाई कोर्ट में 5 आदमियों की जमानत हो चुकी है, बाकी की जमानत नहीं हुई है। वो तकरीबन 52 अक्यूज पर्सन्स के हैं, उनकी जो है बेल एप्लीकेशन आज रेडी हो गया है। इंशाल्लाह कल वो भी फाइल। बल्लारी से कुछ लोग रिलीज हो रहे हैं बोल के ऐसा वो मैं आता हूँ आपको। अभी जो है हमने जमानत देने का काम पिछले 4 दिन से शुरू किया है। हमारा टारगेट जो है रमज़ान से पहले इन बच्चों की रिहाई का टारगेट है हमारी को। अभी रमज़ान सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है, उसमें सेकेंड सैटरडे, 4th सैटरडे, संडे, दूसरे जनरल हॉलीडेज निकाल देंगे तो हमको हार्डली 20 या 22 दिन ही हमको वर्किंग डेज मिलेंगे जो हमको श्योरिटी देने के वास्ते करेगा। फिर भी जो है जितना भी फास्ट, अगर दिन में 4-4 केस में भी हम श्योरिटी देंगे तो भी हम उस टारगेट को, यानी रमज़ान तक छुड़ाने के टारगेट को कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि रमज़ान से पहले वो लोग रिहा हो सके।